हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 23 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं इंडस वाटर ट्रीटी, साथ में डार्क ऑक्सीजन अभी काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। ग्रे मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025 संपन्न हुई है, इसके विजेता कौन रहे हैं ये देखेंगे। प्रलय मिसाइल और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी। सो यहाँ पर सिंधु जल संधि के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान in 1960 with the World Bank as a mediator. And second, under the treaty, India is allowed to build hydroelectric plants on the eastern rivers subject to certain conditions regarding water flow. And third, the allocation of water under the treaty is based on the usage rights of the rivers with no consideration for future population growth in the respective countries. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है जबकि एक इनकरेक्ट है और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं। So the treaty allocates water to India and Pakistan based on historical uses and the principle of equitable allocation, but it does not specifically account for future population growth. So the agreement was based on the existing needs and infrastructure at the time of the treaty without adjustments for future demographic changes. And under the provision of Indus Water Treaty signed between India and Pakistan in 1960, the two commissioners are required to meet at least once every year alternately in India and Pakistan. सो लास्ट टाइम पे ये जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी इंडिया में 30 मई 2022 को। So this treaty sets out a mechanism for cooperation and information exchange between the two sides on the use of water of Indus River and its 5 tributaries, जिनमें शामिल हैं सतलज, ब्यास, रावी, झेलम and Chenab. So it allocated the 3 western rivers Indus, Chenab and Jhelum to Pakistan for unrestricted use, bearing certain non-consumptive agricultural and domestic uses by India, and the 3 eastern rivers Ravi, Byas and Satluj were located to India for unrestricted uses. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term dark oxygen recently seen in the news refers to which of these? यहां पर अभी हाल ही में समाचारों में आया शब्द डार्क ऑक्सीजन जो है उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द डीप ओशन बाय पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट और फोटोसिंथेसिस। Second, oxygen trapped in ancient ice cores studied to understand past climate conditions. Third, oxygen released by undersea volcanic activity during eruptions. And fourth, oxygen produced by bioluminescent organisms in the deep ocean. आपको बताना है कि डार्क ऑक्सीजन ये जो कॉन्सेप्ट है ये परफेक्टली किसके साथ मैच होता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
सो डार्क ऑक्सीजन होता है द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द डीप ओशन बाय द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट और फोटोसिंथेसिस। सो आप देख सकते हैं यह भी चर्चा में क्यों रहा, बिकॉज डीप सी रिसर्चर्स हैव लॉन्च्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट टू इन्वेस्टिगेट डार्क ऑक्सीजन, अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन टोटल डार्कनेस ऑन द ओशन फ्लोर। So it relates to oxygen produced without light. So it is refers to oxygen produced in the deep ocean through electrochemical activity of polymetallic nodules, not by plants or photosynthesis. So here polymetallic nodules, which are rich in metals such as manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and lithium, generate oxygen by splitting water molecules into hydrogen and oxygen. And this process happens in the absence of sunlight. Hence, oxygen production occurs through electrochemical reaction, not by biological means. सो ये डिस्कवरी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है ये देखते हैं। सो इट वाज प्रीवियसली बिलीव्ड दैट ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन ओशंस वाज लिमिटेड टू फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंकटन एंड एल्गी, बट विद दिस डिस्कवरी इट एड्स अ न्यू dimension to understanding oxygen cycles in the marine ecosystem. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रे मार्केट। सो यहाँ पर ग्रे मार्केट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्रे मार्केट refers to the unofficial market where financial instruments such as IPO shares are traded before their official listings on the stock exchange. And second, transactions in the grey market are not regulated by the Securities and Exchange Board of India. आपको बताना है कि ग्रे मार्केट से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं Grey market is an unofficial market where IPO shares or applications are bought and sold before they become available for trading on the stock market. So it is also termed as a parallel market or an over-the-counter market. And in the grey market premium increases when the demand for the stock is high and decreases when the demand is low. साथ ही अगर हम सेबी की बात करें तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 12 of April 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड देन इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन 30th of January 1992 थ्रू सेबी एक्ट 1992। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच। आप ध्यान रखेंगे कि सेबी वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच क्रिकेट टीम हैज वन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस क्रिकेट टीम ने 2024 एंड 2025 की जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो जीती है। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जीता है कर्नाटका ने। आप देख सकते हैं
Karnataka men's senior cricket team won its fifth Vijay Hazare Trophy by defeating Vidarbha by 36 runs in 2024 and 25 final. So the final was held on 18th of January 2025 at Kotambi Stadium, Vadodara, Gujarat. So this victory ended Karnataka's 5-year title drought in domestic cricket, and Vijay Hazare Trophy was organized by the BCCI as a premier 50-over one-day tournament featuring 38 Ranji teams. So आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में ये संपन्न हुआ जो विजय हजारे ट्रॉफी है, ये 32nd एडिशन है विजय हजारे ट्रॉफी का। और आप ध्यान रखेंगे इसमें विनर जो टीम रही है वो रही है कर्नाटका और रनर जो टीम रही है वो है विदर्भा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द प्रलय मिसाइल? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रलय मिसाइल किस संगठन ने विकसित की है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो प्रलय मिसाइल को डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने। साथ ही आप कमेंट करके बताएंगे कि हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं द प्रलय मिसाइल इंडियाज फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल विल बी showcased in the Republic Day parade, and it is a short range surface to surface ballistic missile with a range of 150 to 500 km developed to meet the army's tactical needs. So it can carry a 350 to 700 kg conventional warhead and strike enemy positions with a high accuracy. और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। सो डीआरडीओ एक एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1958 after combining technical development establishment of the Indian Army and the Directorate of Technical Development and Production with the Defense Science Organization. So आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। और वर्तमान समय में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कामत। So, starting with the 10 laboratories, DRDO has now grown to a network of 52 laboratories, which are deeply engaged in developing defense technologies covering various disciplines like aeronautics, armaments, electronics, combat vehicles, missiles, then engineering systems, etc. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। सो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, सेकंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, थर्ड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक एंड फोर्थ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है that how many of the above are publications of the World Economic Forum. So आपको बताना है कि विश्व आर्थिक मंच का इन रिपोर्ट्स में से प्रकाशन कौन सी है या कितनी है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर जो 3 रिपोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हैं, जबकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। आप देख सकते हैं। So the World Economic Forum is hosting its annual meeting in Davos, Switzerland from January 20th to 24th
where key reports such as Global Risk Report 2025 and the Future of Job Reports 2025 are being discussed. So इस वजह से ये अभी काफी चर्चा में रहा है। हम देखते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। आपने देखा कि इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, and this report identifies and analyzes pressing global risks such as climate change, geopolitical tensions, and technological challenges. So, second one is Global Gender Gap Report. This World Economic Forum publication ranks countries on gender parity across 4 dimensions. और ये dimensions हैं economic participation, educational attainment, health and survival, and political empowerment. थर्ड वन इज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। सो ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है, एंड दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, ट्रेंड्स एंड द स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट इमर्जिंग थ्रेट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड। देन फोर्थ था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हमने देखा कि ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पब्लिकेशन नहीं है। It is published by the United Nations Development Programme and it accesses human development based on health, education and income. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, एंड द फोरम engages the foremost political, business, cultural and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. सो इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी जो मेजर रिपोर्ट्स हैं, इन 3 रिपोर्ट्स के अलावा जो कि हमने अभी देखा, एक तो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट। इनके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसके साथ ही एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है, और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसको स्टैब्लिश किया है एक जर्मन प्रोफेसर थे क्लॉस स्कॉब, उनके द्वारा इन 1971। और शुरुआत में इसका जो नाम था वो था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।